will begin with lesson number 4, introduction to this is introduction to SDMA, PDMA, FDMA, CDMA and OFDAM. These are the frequency modulations. Let's begin with multiplexing. Multiplexing means the different channels, users or sources can share a common space, time, frequency or code for transmitting data. So while the data is being transmitted over the mobile network, they share the common space. जो कॉमन स्पेस है उसको वो शेयर करते हैं, टाइम, फ्रीक्वेंसी और कोड को शेयर करते हैं while they are transmitting. Who is doing all these things? The user who is using the channel. So what all they share is space, time, frequency and code. So we'll see all these 4 modulations: SDMA, space modulation, time modulation, frequency modulation, then all these modulations. So let's begin with the multiplexing. Space division multiplexing, space division multiple access SDMA, TDMA time division multiple access, frequency division multiple access FDMA, code division multiple access CDMA and code orthogonal frequency division multiple access, that is COFDM, also known as OFDM. Okay. Now let's begin with the SDMA. A division of S stands for space division. A division of available space. जो space available रहता है उसको हम एक channel बोलते हैं. उसमें से एक channel कौन सा है? Space. उस space का उस channel को transmission के लिए use करना and for transmitting of multiple signals. तो उसके लिए हमको उसको multiplexing करना पड़ेगा, उसको division करना पड़ेगा multiple sources के लिए. So multiple sources can access the medium at the same time. एक टाइम पे multiple sources should access the same medium, so that medium should be common to all the users who are using. So for that we need to multiplex that. That is why space division multiplexing is being used. So wireless transmitter transmits the modulated signals and assesses a space slot, and another transmitter assesses another space slot, much that in the signals from both can propagate in the 2 separate spaces in the medium without affecting each other. Means there are two channels which should be utilized. Means that there are more than one user, एक से ज़्यादा user है, 2 users हैं, and they want to transmit the signals on the in the space. तो वो जो space है उसमें 2 channels बनाने हैं multiple accessibility के लिए. So for that this is being used. So 2 separate space channels without affecting, without distortion, the signals can be reached to the receiver. So transmitter should be able to send and the receiver should be able to receive the signals without any without affecting each other. तो एक space को ही एक से ज़्यादा users use करना है उस space को. That is what is space division. Say for example there are 4 groups A, B, C, D of mobile users and 4 different original space slots R1, R2, R3, R4. मतलब ये users हैं 4 मोबाइल के और उनको ये space को यूज़ करना है. तो ये जो space है ये common space है, बट इन ये space जो है इन चारों को अलग अलग channels के लिए channels बनाकर इनको provide की जाएगी. तो R1 का जो ट्रांसमिशन है वो R2 के साथ में मिक्स नहीं होगा, R2 का R3 के साथ में नहीं, R3 का R1 के साथ में नहीं, कोई एक दूसरे के इसमें उसका चैनल्स जो है वो मिक्सअप नहीं होगा. सो ग्रुप ए यूजेस R1, ग्रुप बी यूजेस R2, ग्रुप सी यूजेस R3 एंड ग्रुप डी यूजेस R4 फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम अ बेस स्टेशन. तो बेस स्टेशन से सिग्नल्स सेंड करना और रिसीव करना. तो एक ग्रुप को एक चैनल दिया, दूसरे ग्रुप को दूसरा चैनल दिया, तीसरे ग्रुप को तीसरा चैनल दे दिया. लाइकवाइज इट इज़ बीइंग यूज्ड. दिस इज स्पेस डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग. मतलब क्या हुआ, हमने स्पेस को डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड किया सो दैट मल्टीपल ग्रुप्स कैन एक्सेस द चैनल विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर. दैट इज स्पेस डिविजन मल्टीपल एक्सेस. देन वी हैव टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस. मतलब इसी तरह से समय भी जो है उसको डिवाइड करना है. डिफरेंट सोर्सेज यूजिंग द डिफरेंट टाइम स्लाइसेस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स. मतलब सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करना है और उनको एक ही समय पे ट्रांसमिशन करना है. तो उनको कैसा डिवाइड किया हुआ है, इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इन द टाइम स्लाइस. टाइम स्लाइस से उसको डिवाइड किया, डिफरेंट टाइम स्लाइस दिया हुआ है सेम
मीडियम को एक्सेस करते टाइम पे. सो एन एक्सेस मेथड इन विच मल्टीपल यूजर्स, डेटा सर्विसेज और द सोर्सेज अलॉटेड डिफरेंट टाइम स्लाइस टू एक्सेस द सेम चैनल. एक चैनल को एक से ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं एट अ टाइम, तो उस समय उसको हम डिफरेंट टाइम स्लाइस में डिवाइड कर देंगे, ताकि वो उसी समय एज्यूम होता है कि वो उसी समय चल रहा है, बट वो डिफरेंट टाइम स्लाइस यूज़ करते हैं, और वहाँ जाने के बाद जब वो रिसीवर के पास पहुँचता है तो उस टाइम स्लाइस के साथ में वो कॉन्फ़िगर हो जाता है और उसको ओरिजिनल डेटा रिसीव होता है. सो अवेलेबल टाइम स्लाइस divided among the multiple modulated signal sources. These sources use the same medium, set of frequencies and the same channel for the transmission of the data. डेटा के ट्रांसमिशन पे वो क्या क्या चीज़ें सेम यूज़ कर रहे हैं, मीडियम भी स्पेस है, मीडियम भी सेम यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम यूज़ कर रहे हैं, स्पेस भी सेम यूज़ कर रहे हैं, बट सिर्फ टाइम को जो है वो डिवाइड किया हुआ है. टाइम इज़ बिंग डिवाइडेड फॉर द मल्टीपल यूजर्स modulated signals, so that when the receiver is receiving the data, it will receive the data at the same time without any distortion. Say for example we have GSM technology where 8 radio carrier waves are there. For example C1, C2, C3, C4, C8 तक है. In 8 TDMA टाइम स्लाइस 8 टाइम स्लाइस डिवाइड किया हुआ है C1 से लेकर C8 तक के. 1 फॉर ईच रेडियो कैरियर, हर एक रेडियो कैरियर के लिए ये C1 से लेकर C8 तक 8 डिफरेंट GSM, 8 different GSM radio carriers are there, and for these 8 different radio carriers GSM technology, this TDMA, that is time slice, has been divided for all these 8. So 8 phone GSM devices simultaneously can transmit the same frequency band. एक ही frequency band पर एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली इतने सारे लोगों को रिसीवर सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टाइम डिविजन. सो टाइम स्लाइस इतना स्मॉल रहता है कि पता ही नहीं चलता है. देखो 577 माइक्रो सेकेंड्स का टाइम स्लॉट है, तो एक एक टाइम स्लॉट जो है इतने कम सेकेंड्स का रहता है. उसके बाद एक को इतना टाइम स्लॉट दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, फिर जंप करके वापस पहले के पास में आ गया, तो जो स्विच ओवर टाइम रहता है वो भी बहुत ही कम रहता है. तो डिफरेंस ही नहीं पता चलता कि कोई डिस्टॉर्शन है या कुछ सिग्नल्स अफेक्ट हो रहा है. सो द सेंडर, इट लुक्स लाइक द सेंडर हैज सेंड द डेटा एट वन टाइम एंड इज बीइंग रिसीव्ड एट द रिसीवर्स एंड विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर सिग्नल्स इन बिटवीन. तो ये दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज टाइम स्लाइस, टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग के कारण होता है. तो हमने पहला स्पेस डिविजन देखा, दूसरा टाइम डिविजन देखा, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी डिविजन. डिफरेंट सोर्सेज यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सिग्नल्स के लिए यूज़ की जाती है. दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग. सो एन एक्सेस मेथड इन विच द मल्टीपल यूजर्स, डेटा सर्विसेज और द सोर्सेज अलॉटेड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लाइसेस. यहाँ फ्रीक्वेंसी डिवीजन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लाइसेस हैं, टाइम डिवीजन में डिफरेंट टाइम स्लाइसेस हैं. सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर बीइंग देयर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स टू एक्सेस इन द सेम स्पेस एंड टाइम स्लाइस. बाकी चीज़ें सेम रहती है, चैनल स्पेस चैनल जो है वो सेम है, टाइम स्लाइस सेम है. डिफरेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का टाइम स्लाइस यूज़ किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन यूज़ किया. सो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज डिवाइडेड इनटू बैंड्स which are used by the multiple sources for the channel at the same time, same space but different frequency. So this is frequency division. Frequency division मतलब frequency is different frequency band पे वर्क कर रहा है, but space जो है वो सेम है, टाइम स्लाइस सेम है और frequency different है. So it is being possible because of the division of the frequency. So various channels allotted distinct frequency bands for the transmission. So here we see the example like GSM 900. Last time we have seen that GSM 900 at 890 to 915 megahertz uplink from the user to base station and 935 to 960 megahertz downlink. अपलिंक मतलब सेंड करने की फ्रीक्वेंसी, डाउनलिंक मतलब रिसीव करने की फ्रीक्वेंसी. तो GSM टेक्नोलॉजी 900 जब यूज़ करता है तो इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज उसको अपलोड करने के लिए लगती है, इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज उसको डाउनलोड के टाइम पर रिसीवर के एंड पे यूज़ होता है. So each channel of 200 kilohertz bandwidth is being utilized. So 124 channel uplink needs 200 kilohertz into 124, that is 224.8 megahertz. Similarly 124 channel downlink requires 24.8 megahertz of frequency. So these are some of the example of the frequency division multiplexing where the frequency is being divided. frequency जो है वो divide की हुई है, uplink के लिए अलग है, downlink के लिए अलग है, but it uses the same time slice and the same space channel for transmission of the signals.
Then the fourth one is CDMA, that is different code division multiplexing, different sources using different codes for the transmission of the signals. So signals when being sent from the sender to the receiver, it is using different codes for the transmission. So an access method in which the multiple users are allotted different codes, sequence of symbols to access the same channel set of frequency. Space same है, channel same है, time same है. What is different is the code division. तो कोड जो सेंड हो रहा है जिस कोड में वो डिफरेंट है. जैसे अ सिंबल इज अ बिट दैट इज 0 और 1 विच इज ट्रांसमिटिंग आफ्टर एनकोडिंग एंड प्रोसेसिंग बिट्स ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट, वीडियो, पिक्चर्स. जैसे ये पिक्चर्स है, वीडियोस है, ऑडियोज है, ये सिग्नल्स जो है वो अगर सेंड हो रहे हैं तो वो किस फॉर्म में हो रहे हैं? सिम्बॉल्स के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, जीरोज और वंस. तो उसका जो कोडिंग मेथडोलॉजी है, कोडिंग मेथड्स हैं, वो कोडिंग मेथड डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट सोर्सेस के सेंड करने के लिए. तो दैट इज कोड डिवीजन. तो उस कोड का डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट सोर्सेज यूजिंग डिफरेंट कोड्स मेथड. हर सोर्स अलग अलग, जैसे अगर 4 सोर्सेज हैं, यहाँ एग्जांपल देखो, हमारे पास अगर अलग अलग सोर्सेज हैं तो अलग अलग सोर्सेज अपना अपना कोडिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं. यूज फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसीज FC0, FC0 प्लस FS, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है इसकी. सो फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड chipping frequencies in scheme called DSS, that is direct sequence spread spectrum, and hopping frequency in FHSS, that is frequency hopping sequence spread spectrum. That we have seen. direct मतलब अगर sender और receiver directly send कर रहा है frequency तो वो दैट इज़ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम. एक बार मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था. हॉपिंग में क्या होता है? एक एंटीना यहाँ, एक एंटीना यहाँ पे, एक एंटीना यहाँ से इस एंटीना पे जब पूरा, इस एंटीना से थर्ड एंटीना में और नेक्स्ट एंटीना में. उस समय जब वो एंटीना चेंज कर रहा है तो उसका जो कोडिंग सीक्वेंस है वो भी बदलेगा. बट अगर वो डायरेक्ट सेंड कर रहा है तो उसका कोडिंग सीक्वेंस डिफरेंट होगा. तो डिफरेंट कोडिंग सिस्टम्स में बी देयर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्पेस डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग. स्पेस डिविजन अगर है तो स्पेस डिवीजन अलग अलग होने के कारण यहाँ पर कोड डिवीजन भी डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट सिम्बॉल्स यूज सकते हैं. जैसे CDM में चिपिंग फ्रीक्वेंसीज वेयर इट इज़ बीइंग यूजिंग द डायरेक्ट DSS व्हेन एग्जाम्पलरी कोड इज सीक्वेंस इज दिस. सो चिपिंग फ्रीक्वेंसी कैरिंग द कोड 1 bit आर डिनोटेड एज हाई बिट्स, zeros low bit, high bit 0 bit. Okay. Now we have the last one, OFDMA, orthogonal frequency division multiplexing, an access method in which multiple carriers, multiple tone transmitting for a set of symbols. Multiple tone transmitting is there. Multiple users, data services, sources allotted different frequency slices to access in the same space and time slice. But what is different is orthogonal code. Orthogonal code is different. बाकी चीज़ें सेम रहेगी. टाइम सेम है, स्पेस डिवीजन सेम है, टाइम स्पेस है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट व्हाट इज डिफरेंट इज द ऑर्थोगोनल कोड्स डिफरेंट है. सो ईच कैरियर ट्रांसमिट्स अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ सब कैरियर्स एंड ईच सेट ऑफ सब कैरियर्स इज असाइंड अ सेट विच इज ऑर्थोगोनल टू अनदर. दैट इज टू फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स S1T and S2T आर सेट टू ऑर्थोगोनल इफ S1T हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट इंस्टेंस, देन S2T हैज अ जीरो एम्पलीट्यूड एंड वाइस वर्सा. मतलब दो फ्रीक्वेंसीज हैं जैसे S1 और S2, उस समय ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इस टाइम पर S1, इस टाइम पर S2. सो बोथ सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ S1T हैज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अगर S1T का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है एट द इंस्टेंट व्हेन S2T हैज़ अ जीरो एम्पलीट्यूड एंड वाइस वर्सा. मतलब एक का जीरो एम्पलीट्यूड है, एक का हाई एम्पलीट्यूड है, या फिर इसका जीरो एम्पलीट्यूड है और इसका हाई एम्पलीट्यूड है. उस समय कौन सा डिवीजन यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है? वो कोडिंग सीक्वेंस दैट इज ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी, OFDAM. ओके. सो वी हैव सीन स्पेस डिवीजन, टाइम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, कोड डिवीजन, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग्स. स्पेस डिवीजन में स्पेस चैनल्स जो है वो डिफर करता है, पर टाइम, कोड और टाइम और फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं सेम रहती है. पर टाइम डिवीजन में स्पेस और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. फ्रीक्वेंसी डिवीजन में फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल एक्सेस रहता है, तो ये डिफरेंट रहती है. डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए टाइम, स्पेस, कोड सेम रहता है. सो वी हैव दिस टाइप ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिविजन्स.
Okay, so we end up with the introduction to SDMA, space division multiple access, time division multiple access, frequency division multiple access, CDMA, code division multiple access, and orthogonal frequency division at multiple access. Okay.